Hello everyone, Johar. My name is Divya. As you all know me very well, I belong to a beautiful city which has been very fond of waterfalls, valleys, that is Ranchi, Jharkhand. So this video is going to be very interesting and very helpful for the people who are trying their career in aviation industry. Through this video you'll get to know about my journey, my experience giving interview, got PhD and then cracked the PhD as well, and then selected for cabin crew for Indigo airline. And I'll tell you people that if you are trying your career for aviation industry, I'll definitely suggest you to try your career for Indigo airline, because this airline is very helpful for the fresher to start their career. Okay, so I will definitely suggest you to first give your interviews for Indigo airline, as अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं. अगर आप झारखंड से हैं तो यू कैन गो टू वेस्ट बंगाल, कोलकाता. वो एयरपोर्ट के नियर बाई एक होटल है O2 करके, you'll get to know there. वहाँ पे सारे इंटरव्यूज़ होते हैं ज़्यादातर cabin crew के लिए. I'm not talking about ground staff. If you are done with your +2 education in HSC, then you can go for the interview to Kolkata if you're from Jharkhand. And there are many places जहाँ पे इंटरव्यूज़ अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं इंडिगो के. बहुत सारे एयरलाइंस के ऐसे हो रहे हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड मेडिकल. अभी कुछ दिन पहले मेरे कोलीग्स अभी जो मेरे साथ अभी इंडिगो में जिनके सिलेक्शन हुए, वो लोग वापस से गए थे बिकॉज उनको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है अभी तक. तो वो गए थे विस्तारा का इंटरव्यू देने के लिए. तो ये तो रहा बाकी सारी बातें. अब चलते हैं मेरे वीडियो की ओर. Check my videos, watch till end, and you'll get to know what were the questions, how did I crack my interview. Okay, so let's go. On 16th of December, I have been for my interview for Indigo airline. I have been to Kolkata. There is a hotel called O2 Oxygen 2 Hotel, which is nearby the airport. Their interview was conducted. I will tell you people that since 2 years I was trying for aviation industry. Interview crack karna is not a big deal, but yes, if you have a good communication, if you are a good listener, if you have any experience for customer service, or like if you are very confident about your grooming personality or your communication, then you can definitely go and crack the interview. But बहुत ऐसे मैंने बहुत लड़कियां देखा था, बहुत सारी लेडीज़ जो आई थी इंटरव्यू के लिए. कुछ लोग जो थे कोई 20 टाइम्स अटेम्प्ट करके फिर भी हिम्मत नहीं हारते लोग. ठीक है, सो मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था, मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गई थी, कोलकाता ही गई थी, उस वक्त हुआ था कि मैं फर्स्ट राउंड में ही आई गॉट रिजेक्टेड. एंड देन जब मैं सेकेंड टाइम दूसरे महीने में गई, तो इट वाज लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. बट फिर भी मैं आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं वापस गई. उस दिन मैं सेकेंड राउंड तक गई BMI, एंड देन थर्ड राउंड आई वाज रिजेक्टेड. एंड देन जो मैं थर्ड टाइम जब गई, थर्ड टाइम भी मैं नहीं हो पाई. थर्ड टाइम भी इट वाज लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर 2 महीना मैं प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद मैं वापस जाऊँगी. एंड देन फिर मैं गई थी लास्ट ईयर. इट वाज द टाइम ऑफ इट वाज मंथ ऑफ August. I went there for the interview. That was my 4th time, and it was like my last round में जाके I got rejected, and that was so like that day I was crying literally because मैं last round में थी. बेसिकली 4 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ में. फर्स्ट राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है, कभी कभी पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है, बट ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन में ही. समटाइम्स दे विल कॉल यू इन अ ग्रुप एंड दे विल आस्क यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस. बट कभी कभी होता है कि दे विल आस्क यू टू कम इन अ ग्रुप ऑफ 10 एंड दे विल गिव यू वन टॉपिक एंड दे विल हैव टू स्पीक फॉर 1.5 minute, और जब तक वो बोले ना कि बेटा रुक जाओ, बिकॉज अगर आप बीच में रुक गए
they'll cross question you. ओके वो लोग फिर से वापस आपको क्वेश्चन कुछ और करेंगे एंड you'll have to answer it, और फिर आपको 1-2 मिनट फिर से you'll have to explain. Okay, you'll have to speak. Only thing is you are a good speaker or you are a good communicator with like it depends upon your English, and आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश शुड बी वेरी फ्लुएंट, वेरी. तो मैं 4th राउंड में रिजेक्ट हो गई. फिर क्या था, मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं दूंगी इंटरव्यू. आफ्टर 3 months आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ एंड देन अगेन आई विल गो फॉर द इंटरव्यू, और उस वक्त मैं क्रैक करूँगी. मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काइंड ऑफ आई वॉज थिंकिंग आई एम अ काइंड ऑफ ओवर थिंकर पर्सन. मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो मेरे दिल में लग गया वो चीज़ कि मैं लास्ट राउंड क्रैक नहीं कर पाई. लेकिन फिर क्या था, 3 महीने मैंने जम के एकदम कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया. मैं हर रोज़ सुबह में उठती थी. द बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन इज़ मिरर, और यू शुड रिकॉर्ड द वीडियोज़ ऑफ हाउ यू स्पीकिंग. और आप बहुत सारे नेट में भी क्वेश्चंस होते हैं कि वो लोग जो हमारे HR होते हैं, जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस करते हैं. एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल्स इन यूट्यूब एज वेल एज इन गूगल. यू कैन सर्च इट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे. हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई इंडिगो, विच कलर इज़ योर फेवरेट. इफ़ यू आर टेलिंग इंडिगो, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट, यू विल हैव टू इलेबोरेट ईच एंड एवरीथिंग. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. फिर मैं क्या था, मैं 3 महीने अच्छे से प्रिपेयर करी, एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑन 16th of December. that day I was not sure that I'll get selected, but yes, ऐसे दिल में फिर भी होप है. वो गाना सुना है, वो बस सुबह ही गाना मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मुझे भी ये गाना में वीडियो बनानी है अपनी. फिर क्या था, मैं ऐसे रात में भी मैं वहाँ पे 15 को ही पहुँच गई थी. मैं शाम में वहाँ पे फिर मैं रात में भी सोने से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर ली कम्युनिकेशन. एंड देन फिर सुबह उठ के 6 बजे मैं उठी, क्योंकि 8 बजे से रिपोर्टिंग थी. 6 बजे मैं उठी जल्दी से. 1 घंटा मैंने 6 से 7 मैंने पढ़ाई किया. मैंने पहले दिन ही रात में नहा लिया था, प्रिपेयर कर लिया था सब चीज़, अपना यूनिफॉर्म, मेकअप, सब चीज़ रख लिया था साइड में. फिर 16th को मैं 7 बजे अपना मेकअप करना शुरू की. 7:30 तक आई ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड माई मेकअप एंड माई ग्रूमिंग, क्योंकि मुझे मेकअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. मैं मेकअप ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, लाइट मेकअप. अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपकी ग्रूमिंग भी देखी जाती है. आप ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के चले गए, बाल ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे कुछ आईब्रो भी नहीं बनी है, मेकअप नहीं है, यूनिफॉर्म आप कैजुअल्स में आ गए हैं, ऐसा नहीं है. आपको इंटरव्यू जाने से पहले आपको वहाँ पे जो भी आप जिसमें आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी है, क्या क्या यूनिफॉर्म कौन सी पहननी है, कैसी क्या ग्रूमिंग, ऐसे सब वहाँ पे दिया रहता है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगी. अभी ये है मेरा एक्सपीरियंस वीडियो, तो आप ये मुझे पहले ये देख ले. दैट डे फर्स्ट राउंड मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि मैं जो जहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन था उसके जस्ट थोड़े दूर में ही थी. ऐसे 5 मिनट का रास्ता था बाय वॉकिंग. तो मैं मैं ऐसे मेरे साथ में करीब 15 से 20 लड़कियां पहुंच गई थी सुबह, और मैं पहले ही ग्रूमिंग मतलब मेकअप करके आ गई थी. बहुत लड़कियां बहुत दूर से आती है, कब कोई 2 hours उनके घर होते हैं, तो बहुत मतलब डिस्टेंस में घर है, फिर भी वो लोग आ गए सुबह और वो लोग मेकअप कर रहे थे वो जो ड्रेसिंग रूम है उस पर. उसके बाद हुआ कि जैसे कि 50 to 100 लेडीज़ वहाँ पे जो हॉल था, वेटिंग हॉल, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे. और ऐसे धीरे धीरे लड़कियाँ बढ़ते ही जा रही थी. मीन्स टोटल उस दिन 500 to 600 लेडीज़ थी. compete करना इज़ very difficult, not a rocket science, but yes, it's difficult. So मेरा आपको जैसे जैसे आप आएंगे you will get the serial number. मेरा serial number, फिर से गलती, मेरा serial number था 16. yes, हाँ 16 था, और डेट भी उस दिन 16 था. तो मैं सोचा भाई मैं तो लकी हूँ.
फिर क्या था, जो फर्स्ट वो लोग बुलाते हैं फर्स्ट 1 से लेकर 10 तक की लड़कियों को बुलाए फर्स्ट राउंड के लिए। मनप्रीत मैम ले रही थी फर्स्ट राउंड, उसमें HR लोग अवेलेबल नहीं थे, तो फर्स्ट राउंड लड़कियां क्लियर की, उसमें से किसी की भी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर सेकेंड रो में थी मैं मेरा 16 था, तो 11 से 20 को बुलाया गया। उसमें मैं थी और एक लड़की थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट थी कोई। सेकेंड राउंड हमारा हुआ। क्वेश्चन मनप्रीत मैम ने पूछा, मनप्रीत मैम मुझे देख के समझ गए, बेटा तू तो पहले भी आ चुकी है, क्योंकि हर बारी मेरा फर्स्ट राउंड मनप्रीत मैम ही लेती थी, एंड लाइक शी इज़ वेरी काइंड, आई विल से। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, टेल मी समथिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, नो, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इफ यूल गेट द सुपर पावर फॉर 1 डे व्हाट यू विल डू। भाई साहब, और मेरा 16 था तो मैं 6ठे नंबर पर थी। तो पहले लोगों ने बोला बहुत कुछ ऐसे कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, फिर मैंने कुछ अलग सा बोला, लेकिन मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने कुछ बोला लेकिन अलग सा बोला। उनको वो इम्प्रेस हो गई। उसने मुझसे ये पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम दिव्या। आई सेड आई बिलोंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। शी सेड विच इज़ योर ब्यूटीफुल सिटी। आई सेड दैट इज़ रांची, एंड शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड मनप्रीत मैम ने यही चीज़ बोला कि लेडीज यू कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और हम लोग ऐसे देख रहे थे, भाई क्या हो गया, हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, CV क्यों रखा फिर उधर। नहीं, उसके बाद में बोला कि एक्सेप्ट दिव्या, एंड और एक लड़की थी उसका नाम लिया। वी वर लाइक, भाई हम लोग ऐसे हाथ पकड़ के, मैं फाइल पकड़ी हुई थी एंड आई वाज, भाई हो गया हो गया, इसके बाद तो सब क्रैक कर लूँगी मैं, ऐसा भरोसा था अपने आप पे। बट उस दिन मुझे मन नहीं था इंटरव्यू देने जाने का, लेकिन भगवान की कृपा है। फिर सेकेंड राउंड में उन्होंने हम दोनों को रोका, फिर हम लोगों की वो स्लीव्स ऊपर कराए, ठंड के मौसम थे, आई वॉज वेयरिंग ब्लेजर। उसने स्लीव्स में चेक किए, फिर जॉ लाइन्स चेक किए, एंड देन सी सेंड फॉर मेडिकल BMI द सेकेंड राउंड। वहाँ पर भी मैं पहली थी जिसने मेडिकल दिया था अपना, एंड आई वॉज फिट टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। मीन्स हाइट वेट चेक किया, जो नर्स थी, फिर सर थे, एक डॉक्टर थे जो आई साइट चेक कर रहे थे। दे वेर लाइक डोंट स्केयर, मतलब जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना, मेरा वो स्कार्स वगैरह देखने के लिए, मैं कांपने लगी। तो जो नर्स थी उन्होंने बोला कि डोंट बी स्केयर, ऐसे कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर फिट टू गो। आई वॉज लाइक ओके, ऐसा थैंक यू। एंड देन फिर मैं नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोगों को बोला गया वेटिंग हॉल में, आप वेट करिए। फिर हम लोग थर्ड राउंड के लिए वेट कर रहे थे। जो मेरे साथ लड़की गई थी वो भी फिट टू गो थी। एंड देन फिर ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे, जितनी भी लेडीज़ आई हुई थी इंटरव्यू के लिए, करीब 500 to 600 एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। फिर क्या था, सबकी इंटरव्यू होते जा रही थी। फिर थर्ड राउंड हम लोग वेट कर रहे थे। फिर मनप्रीत मैम आती है ऐसे CV लेके बंडल, जिनका नाम लेती है उनको थर्ड राउंड के लिए बुलाया जाता। थर्ड राउंड में पहली लड़की मैं भी थी और 10 लोग हम लोग थे थर्ड राउंड के लिए बुलाया गया। एंड देन थर्ड राउंड में एक मेल HR थे, उन्होंने पूछा, इंटरव्यूअर मेल HR, he was not HR, he was interviewer, sorry. So उन्होंने, I was the first person sitting beside him, और ऐसे रो था, ऐसे वी कर्व बना हुआ था, एंड ही वाज सिटिंग इन द सोफा। सो मैं जस्ट उनके बगल में बैठी थी, सोफा में ही बैठी थी, बिकॉज सीट्स वेर नॉट लाइक, ज़्यादा सीट नहीं था। हम लोग 10 लड़कियां थे, लेकिन उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था। ही सेड कि उन्होंने हम लोगों को कंफर्टेबल कराया एकदम अच्छी तरह से। एंड देन ही आस्क्ड कि talk about social media, and this we call it group discussion round. Talk about social media. अब क्या था, आप अभी सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व होते हैं आप सब, लेकिन क्या है, इंटरव्यूअर के सामने में आपकी भी हक्के बक्की छूट जाएगी। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया कि भाई क्या बोलूँ अब, दिमाग, आई वॉज टोटली ब्लैंक, एवरीथिंग गॉट वैनिश्ड, एंड मैं सोच में पड़ गई कि भाई क्या बोलूँ। एंड ही सेड कि नो वरीज, यू कैन टेक योर टाइम, जब हो जाएगा यू कैन से सर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड देन स्पीक टिल आई स्टॉप यू,
अच्छा ओके सर। फिर मैंने 1 मिनट लिया, मैं सोची क्या बोलूँ, एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। एंड जब तक मैं रुकी नहीं तब तक इंटरव्यूअर ने मुझे बोला नहीं कि बेटे रुक जाओ। फिर उन्होंने बोला 1.5 ऐसे कुछ 2 मिनट्स काइंड ऑफ। मैंने 2 मिनट जैसे मैंने बोला कुछ बहुत कुछ बोला मुझे पता नहीं क्या बोला। सोशल मीडिया वालों कौन नहीं बोल सकता भाई उसकी मैरिज कैसे नहीं बोल सकते, बोल लिया। उसके बाद में फिर उन्होंने रिज़ल्ट हमें नहीं बताया, पूरा कंप्लीट हो गया, रिज़ल्ट नहीं बताया, सबके 3rd राउंड होते जा रही थी, बहुत लड़कियां थी पीछे। फिर हम 4th राउंड के लिए मैम आई, मनप्रीत मैम वापस से वेटिंग हॉल में, हम लोगों को वेटिंग हॉल में वेट करने बोला गया 3rd राउंड के बाद में, किसी को रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया। फिर मनप्रीत मैम इतना सारा CV लेके आई, उन्होंने 10 लड़कियों का नाम लिया। मैंने सोचा मेरा नाम तो नहीं, क्या मैं रिजेक्ट हो गई हूँ? लेकिन खुशखबरी ये है कि जो लड़कियों का नाम लिया था मैम ने वो सारे रिजेक्टेड थे। सब बहुत ही कैपेबल थे, लेकिन कहीं ना कहीं दे लेकिन उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी वीक थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो बिकॉज मैंने भी ऐसे धक्के खाए हैं, मैंने भी रिजेक्शन फेस किए हैं कहीं ना कहीं क्या इंटरव्यू में ही रोक किया है। फिर क्या था, क्या गई, हम लोगों को बुरा लग रहा था उस वक्त कि भाई 3rd राउंड में आके ऐसे रिजेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत लोग तो 1st राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या था कि मैंने फिर मेरी उसमें से एक दोस्त बन गई थी, दोस्त भी थी मेरी, उसका नाम क्या है पता नहीं, वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है लेकिन मैं भूल गई। तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे डांटना मत। वो भी रिजेक्ट हो गई थी, आई फील वेरी बैड, क्योंकि उसने बहुत बार ये ट्राई किया। जब मैं जाती थी तब वो मेरे पहले से इंटरव्यू दे रही थी इंडिगो की, लेकिन कुछ मैं पीछे रह गई थी। मैं बहुत सारी लड़कियां ऐसे रिजेक्शन फेस करके बारी से, मतलब हर बारी वो लोग रिजेक्शन फेस कर रहे थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग बैड। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि भाई मैंने भी फेस किया है ये सिचुएशन, कैसा लगता है, आई नो दैट। ठीक है, लेकिन क्या बोलूँ क्या, क्योंकि बहुत टाइम है, इंटरव्यूज़ तो हर महीना हर वीक हो रहे हैं। ट्राई करो, कभी ना कभी तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देयर इज़ अ पोएम, try and try again. Teacher lesson you said it, try and try again. Yes, you should try till you achieve your dreams. ये मेरे साथ हुआ है। I'm telling you is just because I have experienced it. So try. 4th round हुआ कि हम लोगों को बोला गया go and have something, eat something, freshen up and then come again. But मेरे दिल और दिमाग सब धड़क रहा था, मतलब दिल धड़क रहा था, दिमाग कैसे धड़केगा। दिमाग में मैं बस सोच जा रही थी कि बस अगर आज नहीं हुआ तो, आई वॉज नॉट थिंकिंग पॉजिटिव, आई वॉज दैट टाइम मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक हुआ कि अगर आज नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नेक्स्ट टाइम फिर से आना पड़ेगा, लेकिन मेरे दिमाग में था कि भाई इस बार करना ही है किसी भी हालत में। लेकिन दिमाग में वो ऐसा स्ट्राइक हो जाता नेगेटिव चीज़ें, मैं सोच में पड़ गई थी। मेरी दोस्त कह रही थी मुझे चल ले, कुछ खा ले, यू हैव नॉट इटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई सेड नो, आई विल ईट आफ्टर आई विल गेट सेलेक्टेड। सेलेक्ट होंगे तो खाऊंगी, नहीं होंगी तो मैं सीधा ट्रेन पकड़ूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। लेकिन क्या था, 4th राउंड के लिए हम लोग वेट किए, सब लड़कियों को एक साथ बुलाया, 20 लेडीज। उसमें से हम लोग सब ऐसे रिसेप्शन के सामने बैठे थे, वेटिंग एरिया, हम लोग बैठे थे वहाँ पर। और मेल इंचार्ज जो हमारी जो 3rd राउंड हुए थे, उन्होंने मतलब दो करके सबको अंदर बुला रहे थे। तो फिर मैं और श्वेता थे साथ में। श्वेता मेरे हाथ पकड़ के, हम लोग वी वर प्रेइंग बेटा आज हो गया, मतलब वी वर भगवान को हम प्रार्थना कर रहे थे कि भाई हमारी करा दो आज सिलेक्शन। और श्वेता कह रही है भगवान हमारी करा दो सिलेक्शन, हम लड्डू चढ़ाएंगे। बहुत ही फनी मोमेंट था वो। बट श्वेता रियली आई मिस यू यार। वो एयर इंडिया चली गई है अभी, शी इज़ इन हर ट्रेनिंग। तब मैं और श्वेता थे, हमें इंटरव्यूअर ने अंदर बुलाया एंड उसने बोला कि लेडी यू कैन सेट। फिर मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। आई सेड आई एम वर्किंग इन रेडिसन
I'm working with Radisson and also I'm a fashion model. So I said, oh nice. So he said, you came from? I said, like, I'm from Jharkhand. He said, wow. And he said, tell me something about your city. I explained him like we have a waterfall, we have valleys. And then Sweta मुझे बोला कि come and stand in front of him. मैं गई खड़ी हुई. He said कि आप ऐसे लेफ्ट मुड़ जाओ. मैं लेफ्ट मुड़ी. उसने बोला बाल पीछे करने के लिए. मेरे बाल थोड़े छोटे थे, ऐसे पीछे किया मैंने. फिर उसने ये चेक किया, ये चेक किया. फिर हमारा वर्क चेक किया. उसके बाद में श्वेता का भी सेम किया. उसके बाद में क्या था, हमने बोला क्या वेटिंग में ना वेट करिए. सबकी कंप्लीट हो गई. मनप्रीत मैम आई CV लेके. जिनके डायरेक्ट सिलेक्शन हुई थी, दोनों एक्सपीरियंस थी और एक फ्रेशर थी. CV लेके आई 3. उसने नाम लिया दिस 3 लड़कियाँ थी. उसमें से 2 एक्सपीरियंस और एक फ्रेशर थी. उनके डायरेक्ट सिलेक्शन हुई थी. उनको PhD जाने की ज़रूरत नहीं थी. उनको कॉन्ट्रैक्ट वो हैंड जो होता है जो अभी हमें मिला है वो उनको वो भरना था. सब चीज़ देख के पढ़ के. फिर 3 लड़की ऐसी थी जो ओवरवेट थी. उनको बोला गया आप नेक्स्ट टाइम आइए, वी विल टेक योर फाइनल राउंड एंड देन आपकी BMI टेस्ट करेंगे एंड देन हो जाएगा. उसके बाद क्या था, 3 लड़कियाँ चली गई. 20 में से 6 लड़कियाँ घट गई. उसमें से हम थे 8 या फिर 7 लड़कियों को 1 महीना का PhD मिला. PhD इज़ अ प्री हायर ट्रेनिंग. मीन्स PhD किनको मिलती है, जिनकी जो कैपेबल होते हैं, ठीक है. बट एट सम पॉइंट आप कहीं लैक कर रहे होंगे, कहीं पे आपको कुछ करनी होगी. लाइक कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी ट्रेनिंग. उसके लिए PhD रखा जाता है, प्री हायर ट्रेनिंग. और कुछ लड़कियाँ जो थी 6 से 7 लोग, उनको मिला था 2 महीने की PhD. मेरी सिलेक्शन हुई थी 16 को. मेरी कॉल आई थी PhD के 21 को. मेरी PhD ट्रेनिंग 26 स्टार्ट हुई. 26 से लेके 24 तक. 25 मेरी मिड रिव्यू थी. 25 मेरी फाइनल रिव्यू थी. फाइनल रिव्यू. फिर रात शाम में हमें 6-7 बजे रिजल्ट मिली थी एंड आई वाज हैप्पी. हमारी जो इंस्ट्रक्टर थी शी वॉज़ वेरी काइंड. हमारी जो PhD की इंस्ट्रक्टर थी ना, मैं बोलूँगी अभी तक मुझे ऐसे इंस्ट्रक्टर नहीं मिले हैं. मैं बोलूँगी उन्होंने इतना ज़्यादा नॉलेज दे दिया हमें iFly जाने से पहले ही बता दिया गया कि क्या है. अभी मैं नहीं बता सकती. ये वीडियो बाद में बताऊँगी. ऐसे मेरी इंटरव्यू मतलब ऐसे मैंने क्रैक किया. PhD भी क्रैक करने के बाद PhD में 2 इंटरव्यू होते हैं, एक मिड रिव्यू, एक फाइनल रिव्यू. मिड रिव्यू सारे लोग क्लियर कर लेते हैं. उसमें दैट इज़ ओनली कि आप कितना इम्प्रूव किए हैं इतना दिन में, 10 डेज़ में. आपके PhD स्टार्ट होने के 10 डेज़ के बाद में यू विल हैव योर मिड रिव्यू एंड देन जो लास्ट डे होती है आपकी, मेरी लास्ट डे 24 थी. 25 हमारी मिड रिव्यू फाइनल रिव्यू थी. हम सुबह से वेट कर रहे थे हमारी फाइनल रिव्यू का, लेकिन एट लास्ट हमारी फाइनल रिव्यू सेकेंड हाफ में हुआ. हमें बोला गया था 9 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा. हम लोग सारे मेकअप करके बैठे हुए थे कि बस हम लोगों को लिंक मिल जाए, हम लोग की इंटरव्यू ख़त्म हो जाए. हम लोग बस यही प्रे कर रहे थे. इसमें मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी थी Vinda, and she is also my best friend for now till the end. I know she is very caring. And अभी उसकी जो PhD है ना, उस पर सिलेक्शन नहीं हो पाई थी. There were 5 ladies जिनके सिलेक्शन नहीं, 5 to 6 नहीं हो पाई थी. लेकिन अभी सारे इंडिया में सारे लक कितना अच्छा है ना. बेटा तुम्हारी इधर नहीं हुई तो तुम उधर ही चले जाओ. और हमारी सिलेक्शन हो गई. लेकिन अभी तक हम ट्रेनिंग में नहीं गए हैं. लेकिन फाइनली मेरी जॉइनिंग डेट भी आ गई है. इट इज़ ऑन 6th of April. मैं चले जाऊँगी गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए. वहाँ भी बहुत पढ़ना पड़ेगा. DGC एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, इंडिगो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद में मैं फ्लाई करेंगी. बेस मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. So I hope this video will be very helpful for you, those who are trying their career in aviation industry, especially ladies who are trying to be a cabin attendant. Please मेरे वीडियो ज़रूर देखना. और कुछ भी
क्वेश्चन्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर दीजिए। माई इंस्टाग्राम अकाउंट ACOMHECO। तो आप वहाँ मुझे डीएम कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आई लव टू गाइड यू पीपल, बिकॉज मैंने देखा है मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने कहीं से भी एविएशन की ट्रेनिंग नहीं ली है। एविएशन की ट्रेनिंग लेना इज़ वेस्ट ऑफ मनी आई विल से, क्योंकि आपको इंटरव्यू के बाद में वापस आपको ट्रेनिंग जाना ही है, तो आप उससे पहले ट्रेनिंग क्यों कर लोगे। और ज़रूरी नहीं है, गारंटी भी नहीं है कि तुमको वो प्लेसमेंट ही देगा कंपनी। आई सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट टेक ट्रेनिंग फॉर एविएशन इंटरव्यू से पहले, कभी मत लेना, क्योंकि दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी आई विल से। क्योंकि अभी लाखों पैसे लेते हैं एंड देन दे विल गिव यू प्लेसमेंट इन ग्राउंड स्टाफ की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। और अगर आप कैबिन अटेंडेंट बनना चाहते हैं, सैलरी इसकी मैं बाद में डिस्कस करूँगी, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ। लेकिन मेरी जो फर्दर वीडियोस जाएंगी ना, वो आप प्लीज़ देखना, दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कैसे होता है कैबिन क्रू की मेरिट्स डिमेरिट्स क्या, मैं अगले वीडियो सब में सारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे खूब सारा प्यार दीजिए और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप लोग मुझे ऐसे देखते रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू।